अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? तबीयत ठीक है आप सबकी? अच्छा, आज हम सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में लर्न करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर का नाम आपके सामने मेंशन है, दैट इज द न्यूक्लियस। जहन में रखेंगे आप कि न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की लाइफ में। न्यूक्लियस को हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज द मेन और कमांडिंग पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनिशियल चैप्टर्स के टॉपिक्स में। सेल न्यूक्लियस basically determines the type of cell. So we have got a eukaryotic type of cell that contain a very prominent or dominant nucleus within the cytoplasm. तो यहाँ मैं आपके सामने एक सिंपल सी एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो कि शो कर रही है एक एनिमल सेल को। और इस एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर पर वी कैन सी a double membrane bounded structure, and these membrane shows discontinuous line. You can see over here that there are discontinuous line present, and this discontinuous line containing cell structure is known as the nucleus of a cell. तो ये एक सेल का न्यूक्लियस हम यहाँ पर देख सकते हैं, right बेटा? So this nucleus has got certain things, like it has got the envelope which is known as the nuclear envelope. अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके लिए आपने जहन में रखना है कि इट इज जस्ट लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट it has got comparatively a wide gaps present, and this wide gaps are known as the nucleopore. Now these nucleopores are responsible for the transporting material from nucleus to the cytoplasm, right? Inside the this nucleus, we have got a fluid fill area, and this fluid fill area, basically, this fluid fill area contains variety of the substances in it. Right? So this fluid fill area has got variety of the substances in it, and this area that I'm going to draw here, this area is known as the nucleoplasm, right? Now, this nucleoplasm contains different types of the chemical substances, including the DNA, that is deoxyribonucleic acid, RNA, that is the ribonucleic acid. It has got the nuclear proteins in it, and these nuclear proteins are mainly histones, right? तो ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन हिस्टोन्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, इसके अलावा हम जो है सेल के अंदर एक बहुत ही कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्पेशली व्हेन अ सेल इज अंडर द माइटोसिस स्टेज, दैट इज कॉल्ड इज द क्रोमेटिन. So it has got the chromatin as well, right? Now, this chromatin plays a vital or important role in the cell activity. So this chromatin considered as the all nuclear material of cell, right? So whatever present as a nuclear material in cell, it combines to form a coiled threaded bunch, which is known as the chromatin network, or it is called as the chromatin. So basically, this chromatin contains, we can say this chromatin contains DNA, right? Plus histones, that is the proteins, plus the RNA,
a molecule. So combined together, these three chemical substances combine together and form a quite complex, you can say, chemical material, which is known as the nuclear material of a cell. Now, within the cell, when we see this chromatin area, so we have got different names that are to be, you can say, studied during the A levels biology, and that are of similar type, but with reference to their sizes, they are comparatively, you can say, uh, different in their sizes. So we can categorize them, or we can arrange them with the different pattern, like from smaller to larger or from larger to smaller. मैं आपके सामने एक सीक्वेंस शो कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आ जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को अगर हम स्प्लिट होता देखते हैं सेल में, तो दीज आर गोइंग टू बी डेवलप इनटू दीज स्ट्रक्चर व्हिच आर नोन एज द क्रोमोसोम्स, राइट। अब जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज क्रोमोसोम्स हैव गॉट दी टू थ्रेडेड स्ट्रक्चर व्हिच आर नोन एज द क्रोमेटिड्स। Chromatids are made by number of, you can say, small segments or ball-like structures, which are known as the, you can say, genes, right? Now, these gene has got two major portion. One part of the genes are known as the DNA, that is deoxyribonucleic acid, and second portion is called is histone, which are known as the uh, proteins of the gene. So these different, you can say, structures that are visible while the cell undergoes its division stage. Chromatin among all these is considered as the, you can say, by molecular size is the largest structure. Then we have got chromosomes structure. Chromosome comprises chromatids. Chromatids are made up of genes, and genes are made up of the length of the DNA molecule, plus it is wrapped by or covered by the nuclear protein, which are known as the histone molecule. तो ये एक कंपैरेटिव साइज है इन न्यूक्लियर मटेरियल का, जो कि क्रोमेटिन से स्टार्ट होगा फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट पार्ट, और जाकर डीएनए एंड हिस्टोन के एक स्पेसिफाइड स्मॉलेस्ट सेगमेंट पर जाकर खत्म हो जाता है। तो आपने इनकी ये सीक्वेंसिंग जो है वो याद रखनी है कि सबसे बड़ी साइज क्रोमेटिन की है न्यूक्लियर मटेरियल के तौर पर, और सबसे छोटा साइज जो है वो हमारा इस जीन का है, जो कि अपने अंदर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरी करता है, और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए एक खास किस्म के प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं, राइट। अब जरा आप बात करते हैं क्रोमेटिन को लेकर, क्योंकि ये क्रोमेटिन किसी भी लिविंग सेल के, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के टोटल न्यूक्लियर मटेरियल को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो सेल के, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियर रीजन है, इसमें क्रोमेटिन को हम कैटेगराइज कर देते हैं इनटू टू डिस्टिंग्विश टाइप। यानी कि क्रोमेटिन का जो एरिया है, ये दो डिफरेंट टाइप को कैरी कर रहा होता है। एक हमारा जो क्रोमेटिन टाइप है, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, जबकि दूसरा मेन पार्ट है, इसको नाम देते हैं यूक्रोमेटिन का। अब आपने याद रखना है कि जो हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन है, ये दोनों के दोनों क्रोमेटिन है, यानी कि ये दोनों पार्ट क्रोमोसोम्स में मौजूद होंगे, ये दोनों पार्ट क्रोमेटिड्स में भी होंगे, और इन पार्ट से जीन्स भी बनती होंगी। फर्क जो इनके दरमियान बेसिक है, वो फर्क ये है कि जो यूक्रोमेटिन पार्ट है, इट इज कॉल्ड दी ट्रू, लाइक यू का मतलब ही गुड है, तो इट इज कॉल्ड दी ट्रू क्रोमेटिन सेगमेंट। ट्रू क्रोमेटिन सेगमेंट इन अ वे के this part of this part of chromatin contains, अब देखिए बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का एक आपको फैक्ट यहाँ मिल रहा है कि दिस यूक्रोमेटिन पार्ट of the chromatin contains
एक्टिव, राइट, ये वर्ड याद रखिएगा आप, एक्टिव, राइट। ये कैरी कर रहा होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दिस क्रोमेटिन पोर्शन इज एक्टिव, सो दे आर एक्टिव, सो दिस पार्ट या दे आर ओपन अप फर्दर, राइट। अब ये जब ओपन अप फर्दर होंगे तो फिर क्या होगा कि ये अपनी टू शो टू शो right, so these are active parts, so they are open up further to show their their sequence that can use up to synthesis messenger RNA molecules। तो ये आपने याद रखना है बच्चे कि क्रोमेटिन का जो यू क्रोमेटिन रीजन है, ये वो पार्ट होता है जो कि ओपन हो सकता है, एक्सपोज हो सकता है, शो कर सकता है अपनी सीक्वेंस को, सो दैट मैसेंजर आरएनए कैन बी ट्रांसक्रिप्ट। और ये पोर्शन जो क्रोमेटिन का है, ये अपने फिनोटाइप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंशन कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपने गौर से समझना है कि जो यू क्रोमेटिन पार्ट है ऑफ क्रोमेटिन, इट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन रीजन। इसका आगे का जो मकसद है या मतलब है वो ये है कि जब कभी सेल ने अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शो करना होता है, तो इस सेल में मौजूद ये यूक्रोमेटिन रीजन ट्रांसक्रिप्ट होगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होंगे, और इस रीजन पर मौजूद जो भी जीन है वो अपनी एक्सप्रेशन को एक ऑर्गेनिजम्स लाइफ में या एक सेल लाइफ में शो कर सकती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो फीचर्स जो रेगुलरली अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं वो यूक्रोमेटिन रीजन के साथ एसोसिएट होते हैं। सेकंड टाइप में हमें जो नजर आता है वो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है। दिस हेट्रोक्रोमेटिन रीजन इट इज कंसीडर्ड एज द इनएक्टिव। तो यूक्रोमेटिन एक्टिव है और हेट्रोक्रोमेटिन पोर्शन इज इनएक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो इस क्रोमेटिन मटेरियल का जो इनएक्टिव रीजन है, इट इज कॉल्ड एज द हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। नाउ in this part, यानी कि in the heterochromatin part, again there are number of genes present, but the genes located at this region, means heterochromatin region, do not express their phenotype। ठीक है, तो इधर जो जीन का सेगमेंट मौजूद होगा वो इतना
टाइटली पैक्ड होता है कि मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो भी डीएनए का सेगमेंट हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में मौजूद है, काफी ज्यादा डेंस और काफी ज्यादा कंडेंस या कॉइल्ड एरिया बन जाता है। और ये रीजन सेल के एक ऐसे पार्ट को शो करता है जो अपनी एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन और यूक्रोमेटिन रीजन अपने अपने तौर पर सेल में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सम टाइम कुछ रीजन हेट्रोक्रोमेटिन के एक्सप्रेस नहीं हो पाते, तो जीन का वो फैक्टर हमारे पॉपुलेशन में हमें नजर नहीं आता, सेल उसे एक पर्टिकुलरली शो नहीं कर पा रहा होता है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है और ये यूक्रोमेटिन रीजन है, ये बेसिकली दो पार्ट हैं हमारे जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क के। अब अगर इनके दरमियान थोड़ी सी डिफरेंशिएशन को आगे लेकर चलें, तो ये आपने याद रखना है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन एरिया है, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। तो इट इज हाईली कॉइल्ड, यानी कि यहाँ का जो रीजन है, ये बहुत ज्यादा अपनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हाईली कॉइल्ड वाला पार्ट है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इसकी जो कॉइलिंग है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो टाइट परफॉर्म हो रही होती है। इतनी टाइट होती है, इतनी हाईली कॉइल्ड होती है कि ये अपने रीजन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। उसके अपोजिट पर यहाँ हम देखते हैं कि ये, यानी कि यू क्रोमेटिन वाला जो रीजन है, ये जो है कंपैरेटिवली इसकी जो कॉइलिंग है, ये जो है वो या हाईली कॉइल्ड है, तो ये लूजली कॉइल्ड होता है। अपोजिट है, तो ये लूजली कॉइल्ड है। तो ये अपने जीन वाले सेगमेंट को एक्सप्रेस कर सकता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये आता है कि जो यू क्रोमेटिन वाले पोर्शन हैं, दिस यू क्रोमेटिन पोर्शन यूजुअली कैन स्टेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस कैन स्टेन, यानी कि ये अपने जो कलरिंग है, इसको कलरिंग को बहुत जबरदस्त तरीके से शो जो है वो कर सकते हैं। सो कैन स्टेन में यहाँ पर इसको शो कर रहा हूँ, दीज कैन स्टेन डीपली, यानी कि ये ज्यादा डार्क कलर के स्टेन हो रहे होंगे। ठीक है। दूसरा फैक्टर जो इसके अपोजिट यहाँ हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि अपोजिट फैक्टर पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो पोर्शन होगा, जहाँ पर जो हमें नजर आएगी सिचुएशन, वो ये आएगी कि हेट्रोक्रोमेटिन रीजन का जो स्टेन है, राइट। तो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में हम यहाँ लिखते हैं कि इट कैन स्टेन, तो हेयर इट कैन स्टेन डार्क। ये बहुत ज्यादा डार्क नजर आता है। और इसके अपोजिट में हमें नजर आएगा कि जो यू क्रोमेटिन वाला रीजन है, ये जो है वो स्टेन हो रहा होगा ये भी। और इसकी स्टेनिंग जो होगी वो कंपैरेटिवली जो है वो डीप स्टेनिंग होगी, यानी कि हम ज्यादा बेहतर डिटेल देख सकेंगे इस हेट्रोक्रोमेटिन वाले प्रॉपर जो है वो पार्ट की। आगे चलते हैं। तो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में हमें नजर आता है एक और spherical structure. So again, I am going to draw a cell that is an animal cell. It has got a nucleus, and this nucleus contains another important feature, and that feature is being shown here in the form of this spherical body, just like this, right? And this spherical body is known as the nucleolus, right? So remember this name. This part is known as the nucleolus portion of cell. तो दिस, तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो न्यूक्लियोलस पोर्शन है, इट इज ऑल्सो अ डीप स्टेनिंग बॉडी विद इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलस के इस रीजन में आपको जहन में रखना है कि दिस न्यूक्लियोलस बेसिकली कंटेन्स, इसकी कंपोजिशन भी याद रखनी है आपने। तो इसकी कंपोजिशन में बहुत ही वैल्यूएबल रोल होगा। इट कंटेन्स, न्यूक्लियस की बात हो रही है, राइट।
इट कंटेन्स डीएनए, राइट। तो ये न्यूक्लियस कैरी कर रहा है डीएनए को। नाउ दिस डीएनए बेसिकली, अगेन, this DNA has information, or you can say this DNA has the genetic sequence for RNA and ribosome synthesis। तो ये आपने बच्चे जहन में रखना है कि जो न्यूक्लियोलस रीजन है, इट आल्सो कंटेन्स द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के अलावा इसमें आरएनए भी होंगे, इसमें प्रोटीन्स भी होंगे। अब जो आरएनए बन रहे हैं, यानी कि केमिकली सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो इन न्यूक्लियोलस रीजन में होते हैं, इसलिए कि इसके पास डीएनए का वो वाला इंफॉर्मेटिव सेल मौजूद होता है जिसने डिफरेंट टाइप्स के आरएनए को सिंथेसाइज करना है। और यहीं पर कुछ एरिया ऐसा भी है जिसमें राइबोसोम्स की प्रोडक्शन को इंश्योर करना है। याद रखेंगे कि दीज न्यूक्लियोलस बाय फंक्शन, हम कहते हैं कि दिस दीज न्यूक्लियोलस आर दी साइट ऑफ दीज न्यूक्लियोलस आर दी साइट ऑफ राइबोसोम, दीज आर दी साइट ऑफ राइबोसोम्स। यानी कि राइबोसोम्स की जो फॉर्मेशन है टू सब यूनिट्स में, वो इस न्यूक्लियोलस रीजन के एरिया में ही परफॉर्म हो रही है। तो वी कैन से दीज न्यूक्लियोलस फॉर्म्स दी राइबोसोम्स, राइट बच्चे। अब आ जाते हैं इनके साइजेस को लेकर। तो जो साइजेस हैं राइबोसोम्स, सॉरी, इस न्यूक्लियोलस के या इस न्यूक्लियस के, तो साइज आपको यूजुअली तौर पर इस माइक्रोमेट्री के सब टॉपिक में आपसे एग्जामिनर ने रिकॉर्ड करवा लेने हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोमेट्री वी कैन मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज द न्यूक्लियोलस। तो डिफरेंट मैग्निफिकेशन पर इनकी साइजेस वेरी कर रही होती हैं। तो आमतौर पर जब हम न्यूक्लियस रीजन को देखते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस का रीजन है, यहाँ से लेकर जहाँ तक न्यूक्लियस का जो पार्ट है, वो यूजुअली 25 माइक्रोन मीटर को कैरी करता है। और ये मोर और लेस 10 माइक्रोन मीटर के करीब करीब कहीं साइज में अपने आप को फॉल कर रहा होता है। लेकिन आपने डायरेक्टली साइज याद नहीं करने, साइज आपने जो है वो माइक्रोमेट्री के जो प्रोसीजर है उसके जरिए डिफरेंट मैग्निफिकेशन पर आपने मेजर करके एग्जामिनर को बता देते हैं। So nucleus controls all the activities of cells. So whatever a cell is going to perform, it is being performed by the instruction provided by the DNA molecule. इसीलिए इस न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलिंग पार्ट भी कहा जाता है। तो ये बेटा आज की हमारी जो है वो लेसन थी। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ जो है वो लर्न करने को मिला होगा। आप इस लेसन को अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। किसी किस्म की कोई भी आपको इसमें आस्किंग हो तो आपने नंबर पर अपने नेम के साथ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है, वॉइस नोट के थ्रू। मैं आपको इसका आंसर जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो है वो लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।